publish some things which are related with social sciences department. This is our brochure, and we have a very good library and social sciences department, 172 building. In this library, we have more than 3,000 books, I guess. And the books are related with social sciences department, such as history of sin, archaeology of sin, geology of sin, and many more subjects which are related with sin specifically. And today we are gathered here for a lecture from our renowned guest, Professor Dr. Kesar Bengali, who has been part of Davis University as well. The topic of today's lecture is Charter of Economy for Sin. First of all, I would like to introduce Professor Dr. Kesar Bengali, sir. Professor Dr. Kesar Bengali is an economist with over 4 decades experience in teaching, research and policy advice in Pakistan and abroad. He has done his master's in economics from Boston University, USA, and he has earned his PhD in economics from the University of Karachi. He has taught and conducted he has done his PhD from University of Karachi in Sustainable Development Policy Institute, and he has worked with ZBEST for 5 years. His area of research interest includes issues in planning and development and macroeconomics and fiscal policies, particularly relating to interpersonal and inter-regional inequality, poverty, unemployment, and social injustice. He has over 50 recent publications in national and international journals and conferences, and he is the author and editor of 8 books on subjects which I have told you: inequality, poverty, macroeconomics. So I will request you to please come and join the stage. Actually, we start our programs with a why or a verse of Shablati Bhetai or Sheikh Ayaz. In this regard, I will request our research associate, Mr. Sarang Joyo, please come and recite a why or read the verse from Sheikh Ayaz poetry. रात आई वही तू न आए कहीं, मातमे में धरा का करूं अंधी रही। रात आई वही तू न आए कहीं, मातमे में धरा का करूं अंधी रही। ओ वञा मां वञा कीअं भेरो भञा ओ म्या। ओ वञा मां वञा कीअं भेरो भञा, सिज वींदो लही पेर वींदा रही। सिज वींदो लही पेर वींदा रही। रात आई वही सांवेरा तो सिवा छावेरा छात बाओ म्या। सांवेरा तो सिवा छावेरा छात बा, लोए तो झील दी लू लगंदी रही। लोए तो झील दी लू लगंदी रही। सिर वया गजरिनो कहन जातो तछो म्या। सिर वया गजरिनो कहन जातो तछो, रत वरिया तां जो सिंध ॾिसंदी रही। रत वरिया तां जो सिंध ॾिसंदी रही। रात आई वई तू न आए
two verses that Sarang recited. The poet Sheikh Ayaz said that the night had passed, a bright dawn was appeared, but my beloved had not returned. Thank you. So now I would like to request Professor Dr. Riyaz Sheikh Sahab to please welcome our honorable guest and other guests. Thank you very much. Thank you very much. Since we consider Kaisar as a people's economist, so let's speak in the people's language. तो Kaisar हमारे आवामी इकोनॉमिस्ट हैं, आम आदमी की बात करते हैं, ईट के खिलाफ लड़ते हैं और ईट इनको पसंद भी नहीं करती, लेकिन ये आवाम में होते हैं। तो डॉक्टर कैसर बेंगाली हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू। उनका व्यू है कि इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा कैसे हो, इस मुल्क में एक सोशलिस्ट इकॉनमी कैसे हो, जहाँ बेरोजगारी का खात्मा हो, जहाँ आवाम की इज्जत हो, जहाँ आवाम अपने हक के खुद मालिक हो। तो इस कंटिन्यूएशन में हम डॉक्टर कैसर के पहले भी लेक्चर्स करवाते रहे और हम समझते हैं कि नौजवान इस इशू पर बात करें, बिकॉज ये आपका इंटरेस्ट है, आपका फ्यूचर है। पता नहीं आज से पहले का डॉलर कितना था और आज डॉलर कितना है और आज के बाद डॉलर कितने का होगा, ये आपके सोचने के मसाइल हैं कि हाउ टू फाइट। और जो टॉपिक डॉक्टर साहब ने सिलेक्ट किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जिसमें डॉक्टर कैसर बेंगाली क्या कहूँ एपिसेंटर वन ऑफ द की कैरेक्टर ऑफ एनएफसी अवार्ड आया। फिर एनएफसी अवार्ड के बाद हाउ टू प्रोसेस फर्दर। और लकीली सिंध में इस वक्त सूरत हाल ये कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इज वन पार्टी और ऑल सिंध हैव अ लोकल गवर्नमेंट विच इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी। तो एक दिस इज यूनिक थिंग कि कराची भी उनके पास है, हैदराबाद भी है, एक ये है। एंड सेकेंडली फेडरल गवर्नमेंट में भी थिंग्स आर नॉट एज हॉस्टाइल एज used to be in the past. So this will be a very crucial time ke what should be the future line for the next 5 years. So we want to hear from Dr. Kaisar Begali how he is in the mind, and thank you very much for coming and sharing with us. Thank you, Dr. Thank you, sir. So as Professor Dr. Riyaz Sheikh Sahab said that sir, the world want to listen to ये नौजवान और ये सब जो हाज़रीन हैं और जो नाज़रीन हैं थ्रू ज़ेबेस के जो लाइव हमारा चलता है यूट्यूब पर, वो देख रहे हैं आपको। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड एंड टू वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कैसर बेंगाली। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबेस का, सिंध रियाज एकेडमी का, डॉक्टर रियाज शेख, तमाम लोगों का। खास तौर पे दो स्पेशल थैंक्स। एक जो हमारे दोस्त बाहर से आए हैं, बहुत सारे वेल नोन पर्सनैलिटीज सिटिंग हियर, आई एम ऑनर्ड। आई एम ऑल्सो ऑनर्ड बाय सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स who have come today, particularly encouraged by the students. Some of them are my own students who will come. Thank you. चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र अक्सर होता रहता है कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की और बहुत सारे मसाइल हैं, और पाकिस्तान जिन माशी मसाइल से गुजर रहे हैं आप सबको पता है। अगर अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, फिर भी आपको पता होगा, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर ओन पॉकेट्स टू। 2010 में दो बहुत लैंडमार्क डिसीजंस हुए हैं। एक 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत कई सब्जेक्ट्स अप टू 40 सब्जेक्ट्स जो वफाक के डोमेन में थे वो सूबों में ट्रांसफ़र हो गए। एट द सेम टाइम नेशनल फाइनेंस कमीशन का डिसीजन हुआ, जिसमें पहले सूबों का जो शेयर था टैक्स रेवेन्यू में, टोटल नेशनल टैक्स रेवेन्यू में, वो अबाउट 47% था, वो बढ़ के 57.5% हो गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और जीएसटी सर्विसेज जो वफाक कलेक्ट करता था वो भी सूबों को ट्रांसफर हो गए। ये जो पॉलिटिकल एंड फिस्कल खुद मुख्तारी सूबों को मिली है,
इससे सूबों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। शिकायत मुल्क में ये है, इस्लामाबाद में भी है, कि सूबों ने इतने सारे इख्तियारात आ गए, सियासी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल, और वसाइल भी आ गए, बहुत वसाइल आ गए। उसका हमें ग्राउंड में नजर नहीं आता है डेवलपमेंट। और 2010 और 2024 में तकरीबन डेकेड एंड हाफ, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए। अब तो नजर आना चाहिए। जब एनएफसी हुआ 2010 में, मुझे इत्तेफाक से अपॉइंट कर दिया गया एज एडवाइजर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो एक मिनिस्टर स्टेटस था। आई वाज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर से, एंड इट वाज फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो मैं उसको देखता था। और उस वक्त भी मैंने एक प्रपोज किया था कि जो चीज़ मैंने देखी वो ये है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, उसको वेटिंग का प्रोसेस है, तो 100 किलोमीटर की सड़क भी वो बनाती थी और 1 किलोमीटर की सड़क भी उनके जिम्मे थी। मैंने फिर एक प्रपोज दिया था कि ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जितने इख्तियारात मिले हैं, वसाइल मिले हैं, तो उसका ये करें कि हम एक प्लानिंग बोर्ड बनाएं जो 500 मिलियन रुपी से बड़े प्रोजेक्ट्स हो वो डील करें, और उनका जो प्रोसेस हो बिल्कुल उसकी PC1 बने, जो बिल्कुल फर्स्ट रेट। एक चीज़ होती है बैंकेबल फिजिबिलिटी, यानी वो फिजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि बैंक उस फिजिबिलिटी के बुनियाद पे आपको कर्जा देने को तैयार है। आपको पता है बैंक उसी वक्त कर्जा देते हैं जब उनको एश्योरेंस होती है कि कर्जा वापस भी मिल सकता है। तो इसको बैंकेबल फिजिबिलिटी। हमारे यहाँ जो PC1 बनते हैं उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती। किसी को एक अरब रुपए का प्रोजेक्ट चाहिए, वो अगर पावरफुल शख्स है तो उन्होंने वो डलवा देना है, पैसे भी एलोकेट करवा देते हैं। वो प्रोजेक्ट आधा बनना है, आधा नहीं बनना है, बनने के बाद फायदा है नहीं है, क्योंकि बगैर फिजिबिलिटी के वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पैसे भी एलोकेट हो जाते हैं। एंड यू डोंट सी, सो इफ यू ट्रैवल अराउंड सिंध, इफ यू ट्रैवल इवन इन कराची, you will not see development, you will not see things have improved, in fact it has worsened. कराची में भी पीने का पानी साफ नहीं है, अब हम बॉटल्स वाटर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाउसिंग नहीं है। कराची में ऐसी फैमिलीज हैं जो एक कमरे में 20 लोग रहते हैं। कराची के बाहर तो बहुत ही बुरा हाल है। आप ठटा जाए, विच इज नेक्स्ट डोर, ठटा कराची का बॉर्डर जो है वो गगर फाटक कहलाता है। आप गगर फाटक कॉल करें, ऐसा लगता है कि आप 50, 75, 100 साल पीछे आ गए। अभी भी चले 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है सीरियस एफर्ट होना चाहिए सिंध हर सूबे को, क्योंकि हम सिंध में हैं और सिंध की बात करते हैं आज, कि एक इंस्टीट्यूशनल वो बनाए। इन्होंने सिंध बोर्ड तो बनाया, प्लानिंग बोर्ड, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया। जो प्लान मैंने प्रपोजल दिया था, फॉर्मली दिया था, रिटन था, वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया था, बिकॉज सिंस आई हैड मिनिस्टर स्टेटस, आई कुड आल्सो गिव नोट्स टू द चीफ मिनिस्टर फॉर्मली कि बोर्ड बनाया जाए जिसका चेयरमैन सिविल सर्वेंट हो, लेकिन बाकी मेंबर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स हो। इस वक्त उन्होंने सारे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को रख के एक बोर्ड बना दिया, देयर इज नो चेंज। So we see no change on the ground. ये बात इस वक्त हो रही है, मुल्क में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। मैं समझा कि पहले एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी से इनका भी बना लेते, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अब पैसा भी है, इख्तियार भी है। तो so today's presentation is basically about what charter of economy should Sindh should look like. Five or six areas that I will cover. So first,
area is securing the household economy. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसका मकसद आवाम को, खानदानों को, फैमिलीज को रोजगार देना है, ensuring that they have food to eat, housing, clothing, education, health. That is the purpose of economic management. The people. So we are going to concentrate on that. But there are some macroeconomic issues which have to be taken care of. You know, this is a university, you have to have a good teacher, but the teacher cannot teach. अगर माइक का काम करे, पंखे बत्ती ना बाहर काम करे और कमरे में कबूतर घूम रहे हो, so इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। फिर सिंध का एक बहुत बड़ा एक इशू है फ्लड्स, बहुत डैमेज होता है फ्लड से। मैंने 2 फ्लड्स देखे हैं 2010-11 में, जब मैं गवर्नमेंट में था उस वक्त एक बहुत बड़ा फ्लड्स आया था एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली ऑन इन द फील्ड सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स। वी विल टॉक अबाउट दैट, व्हाट नीड्स टू बी डन। हमने थोड़ा काम किया है इस पे कि हमें क्या फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट, कराची के बाहर अगर डेवलपमेंट करनी है, गगर फाटक का एक जो विजिबल चेंज है वो ना नजर आए, क्या करना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए और खास तौर पे इसमें कराची का, एंड देन इसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, सारी चीजें करने में। सो लेट मी स्टार्ट विद द हाउसहोल्ड इकोनॉमी। आई विल गो वेरी क्विकली क्योंकि रमजान है, टाइम कम है, मुझे जल्दी खत्म करना है। नहीं, आप आगे चलिए, पीछे चलिए। वन मोर, आप पीछे क्यों जाते हैं, आगे जाए जी। बहुत अच्छा नारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था आज से 40-50 साल पहले, रोटी कपड़ा मकान। आई थिंक दैट इज स्टिल रेलेवेंट। अल्टीमेटली एक फैमिली को यही चाहिए, बाकी और चीजें ऐड कर लें आप। तो रोटी से शुरू करते हैं। रोटी में क्या चीजें चाहिए जो बेसिक नीड है खानदान की, जो बाकी कोई चीज अगर ना खाए, नो फ्रूट, नो वेजिटेबल, नथिंग, तो ये है कि रोटी चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, पकाने के लिए प्याज चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए, अदरक है, लहसुन है, ये वगैरह। सिंध का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज आर ग्रोन इन सिंध, जितनी जरूरत है इस पे इंपोर्ट न करें। इनमें से हम अबाउट 10-15% वीट हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वी डोंट ग्रो इनफ। दाल 90% इंपोर्ट करते हैं जबकि हम दाल अपनी ग्रो कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल के लिए हम पाम ऑयल 100% इंपोर्ट करते हैं जब हम अपना सनफ्लावर ग्रो करके अपना कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें लिखी हुई है, व्हीट, पल्सेस, अनियन, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ये तमाम वो चीजें जो हम खुद सिंध में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एरियाज एयरमार्क्ड हो। जैकबाबाद और शादाब कोट के इलाके में दालें हो सकती है, ये मखसूस कर दिया जाए दाल के लिए, वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दाल ग्रो करेंगे। That's how policy should be. गंदम का इलाका रिजर्व किया जाए, बाकी इलाके। चूंकि दाल की कीमत इतनी नहीं है जितनी चावल की या कॉटन या शुगर केन की है, तो गवर्नमेंट को एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनको नुकसान ना हो, उनको वही प्राइस मिले जो कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलनी चाहिए किसी और। तो एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बन सकता है। लेकिन सिंध का मसला ये है कि बहुत सारी ज़मीन शुगर केन के लिए इस्तेमाल होती है जो एक डैमेजिंग क्रॉप है। शुगर केन सिर्फ कोस्टल एरिया में अच्छा क्रॉप देती है, बाकी नहीं देती, लेकिन ये पॉलिटिकल क्रॉप है। तो सिवाय ठट्टा, बदीन, सुजावल, टंडो मोहम्मद खान, कंदवाला यार और हैदराबाद, इसके अलावा शुगर केन की कल्टीवेशन में बैन होना चाहिए। नहीं लगा सकते आप लोग, शुगर फैक्ट्रीज वहां बंद कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वेरी पावरफुल फोर्सेस बेनिफिट फ्रॉम दिस। लेकिन शुगर केन की ग्रोथ की वजह से
हम गंदम और कॉटन कम ग्रो कर रहे हैं जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज बर्डन है। और इंपोर्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एसेंशियल चीजें इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट होगा तो महंगा होगा, बिकॉज डॉलर कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। If it is expensive, food inflation keeps rising and it hits the poor. So if we want to protect the poor, we have to make sure that food inflation is low. It can only be low if all the food that we need is produced internally, we don't have to import it. That should be a policy objective of the same government. Next please. ये शुगर केस की मैंने बात कर ली। नेक्स्ट प्लीज। अब मकान पे आ जाए। 1977 के बाद पाकिस्तानी रियासत ने लो इनकम या मिडिल इनकम हाउसिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। 1988 के बाद हमने कहा जी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, सारा प्राइवेट सेक्टर करेगा। बट लुक एट व्हाट द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग। आप टीवी जरूर देखते होंगे, उसमें जो इश्तिहार आते हैं हाउसिंग के, जन्नतनुमा घर है, महल है, हाउसिंग वो जॉगिंग ट्रैक्स है, स्विमिंग पूल्स है, जिम्नेजियम है, गोल्फ कोर्सेज हैं, और आवाम के पास रहने को जगह नहीं है। कराची के शहर में 20 लोग एक कमरे में रहते हैं, कमरे में सिर्फ सामान रखते हैं, सड़क पे सोते हैं, औरतें बच्चे सब लोग, क्योंकि कमरे में तो रह नहीं सकते, सामान रखने की जगह है। लेकिन उनके लिए मकान नहीं बनते, बिकॉज द स्टेट हैज सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेलफेयर, द प्राइवेट सेक्टर विल डू इट। लेकिन मार्केट जो है वो जवाब दे सिर्फ कुव्वत खरीद को है। द प्राइवेट सेक्टर विल मेक समथिंग इफ देयर आर इनफ बायर्स फॉर दैट प्राइस। If I can't, if the bulk of the population cannot buy something for that price, the private sector will not make it. क्योंकि छोटे घर, कम आमदनी लोगों के लिए घर, मिडिल क्लास के लिए घर बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वो नहीं बनाते, वो महल बनाते हैं। But the state will have to come back and build houses. So what they will do, and housing is not just a roof and a wall and a floor. Housing is defined to include water supply, wastewater disposal, electricity, gas, plus a good neighborhood. Neighborhood में कच्ची सड़कें, टूटी हुई सड़कें, गटर से भरी हुई सड़कें, ये housing नहीं है। So housing की definition जो है much broader है। Your house, inside the house, must have all the facilities, and outside the house, street light बहुत जरूरी है। खास तौर पे ख़वातीन जो अगर काम करती हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेट नाइट तक क्लास होती है, आप अपने इलाकों में जाते हैं, घर जाते हैं, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस। ये सब हाउसिंग का हिस्सा है। हाउसिंग मीन्स योर नेबरहुड इज ऑल्सो सेफ, कंफर्टेबल, enjoyable, and that's what the government has to do. Government has to do. Private sector पे नहीं छोड़ सकते। प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उनके इंटरेस्ट में नहीं, जहाँ मुनाफा नहीं है वो काम नहीं करेगा। लेकिन हमने अवाम के मुनाफे के हवाले से देखा, so this the government has to do, and they have to next please. सिर्फ कराची और हैदराबाद और सक्खर हर छोटे शहर में भी सैटेलाइट टाउन्स बनाने की जरूरत है। कहीं 100 प्लॉट है, कहीं 1000 प्लॉट है, कहीं 10,000 प्लॉट है बाई नीड, और वो मॉडर्न, लिवेबल, कंफर्टेबल, क्लीन हाउसिंग स्टेट्स होने चाहिए विद ऑल फैसिलिटीज। नेक्स्ट प्लीज। गांव में भी, गांव के भी बनाने की जरूरत है। 2010 के बाद, फ्लड्स के बाद मैं गवर्नमेंट में था, हमने 41 विलेजेस को रिहेबिलिटेट किया इन शिकारपुर एंड कश्मीर, और 2 कमरे के घर विद 2 फीट फाउंडेशन, 1 फुट प्लिंथ, ताकि अगले सैलाब में वो घर बह न जाए और थोड़ा बहुत पानी आए तो घर के अंदर पानी ना आए, लोगों की पर्सनल एसेट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हुकूमत
बाद में रिलीफ देती है, चारपाई भी देती है, खाने पकाने के बर्तन भी देती है, सारे रिलीफ प्रोडक्ट्स में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों की वॉश आउट हो जाती है जो नहीं मिलती। एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, मेरा एल्डरली था वो, उसने कहा कि मेरा बेटा 2 साल पहले फौत हो गया था, उसकी मेरे पास तस्वीर थी, वो तस्वीर बह गई है, वो हुकूमत देगी मुझे? So it is not just the material things that people lose when floods wash away their houses. Their personal life is also washed away. And you cannot have that kind of flood every 10 years washing people's lives away and expecting them to start all over again. So, and this is doable. We've done it. ये नहीं सिंध गवर्नमेंट ने किया और ये हर गांव में हो सकता है. Next please. चलते एक स्टेप हो गया पीछे जी। सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियासत अगर है तो उसकी जिम्मेदारियां हैं अवाम की तरफ। देयर आर 2 सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये है कि एवरी सीनियर सिटीजन मेन एंड वुमेन दे मस्ट गेट एन अलाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कनाडा में फॉर एग्जांपल एवरी इंडिविजुअल who crosses 60 years of age, उनको $500 चेक आना शुरू हो जाता है। This is what we have to do. ये जो सड़क पे बूढ़े बूढ़े लोग पैसे मांग रहे होते हैं, जिनके पास हिम्मत नहीं है खड़े होने की, this is very painful. Of course, it's also painful that young 15-year-old girls are also asking for money. But for very elderly people to be, उनके पास में दवाई के पैसे हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली वाले भी उनको सुनाते रहते हैं, खाने को पैसे नहीं है तो दवाई मांगते रहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दे शुड गेट एन अलाउंस। एवरीबडी हू क्रॉसेस, आप डेट तय कर ले, एज तय कर ले, 60 पे नहीं करना चाहते 70 पे करें अगर पैसे नहीं है तो, लेकिन द स्टेट मस्ट सपोर्ट द एल्डरली, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन। द अदर इज हेल्थ। मेरा हेल्थ पे कुछ काम है, रिसर्च का भी है, प्रैक्टिकल भी है उन लोगों के साथ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लोगों के एसेट्स वाइप आउट कर देती है, घर बिकवा देती है। गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट दैट। फ्री ट्रीटमेंट फॉर दिस, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 10 to 12 सच क्रोनिक डिजीजेस। कैंसर है, डायलिसिस है, कुछ और मेडिकल चीजें हैं। आई एम नॉट फेमिलियर विद दोस वर्ड्स बट वी हैव गॉट दैट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक रिक्शा वाला था, उसकी टांग तो टूट गई थी, 10 महीने वो couldn't walk, and for 10 months there was no source of income for him. So these are conditions which the government must support. There are 2 practical cases I have where I organize support. One for a 13-year-old girl who had blood cancer, and another for a 35-year-old man who had liver cirrhosis or both of them recovered. This girl is now grown up, married with 2 children. But उनकी ट्रीटमेंट पूरी बलूचिस्तान में एक शख्स जिसकी ट्रीटमेंट हुई लिवर की, वो गवर्नमेंट को डॉक्टर मालिक ने पैसे एलोकेट किए 55 लाख, उसकी सर्जरी हुई। और दिस गर्ल, उसकी पूरी ट्रीटमेंट एक NGO ने की। अगर ये न होता तो इनके सब कुछ बिक चुका होता घर में, जेवर, पैसे, घर। सो द गवर्नमेंट मस्ट कम इन, इंट्रोड्यूस दिस। इस पे हमने काम किया है, हुकूमत के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड इट कैन बी डन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अब मैक्रो इकोनॉमी ये है कि ये लोग हमेशा हुकूमत पे और रियासत पे इंतजार नहीं कर सकते कि एजुकेशन के पैसे भी वो दें, हेल्थ के भी वो दे, घर भी वो दे, खाना भी वो दे। ये मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। People should stand on their own feet and their dignity cannot be compromised. That can only be done if the economy is providing jobs. And job creation can only come from commodity sectors of the economy, agriculture and industry. Both these sectors have to be promoted. Real estate से जॉब नहीं क्रिएट हो सकती, स्टॉक मार्केट से स्टॉक नहीं क्रिएट हो सकता, चीजें इंपोर्ट करके बेचने से जॉब नहीं क्रिएट हो सकती।
जॉब्स क्रिएट होगी अगर इंडस्ट्री प्रमोट होगी और एग्रीकल्चर प्रमोट होगी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में हमने पिछले 40 साल इन्वेस्ट नहीं किया है। लैंड हैज डिग्रेडेड, वाटर सिस्टम्स हैव डिग्रेडेड। इसमें हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हम काम करते रहे, सुजावल में काम करते थे, वहाँ टोमेटोज काफी होते हैं। थरपारकर में काम करते थे, वहाँ मवेशी बहुत है। आप अगर जो लोग थरपारकर गए, अक्सर आपकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि there's a whole herd of cattle crossing the road away from it, camels, sheep, cattle। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ मिल्क प्लांट क्यों नहीं लग सकता, उसने कहा जी इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मवेशी तो बहुत है लेकिन they don't produce enough। टोमेटोज हम प्रोड्यूस करते हैं बट वी डोंट प्रोड्यूस इनफ फॉर अ फैक्ट्री तो चलेगी पूरा साल। ये नहीं हो सकता है कि 2 महीने चली, क्रॉप खत्म हो गया तो फैक्ट्री बंद हो गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और बढ़ सकती है। और हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल है, इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, एक ही सॉइल है, एक ही क्लाइमेट है, उनकी वीट पर एकड़ डबल है हमारे से। तो इट्स डूएबल, अगेन इट्स डूएबल, इट कैन बी डन, वी कैन आल्सो डू इट। हमारे यहाँ पानी को ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। 2003 में शायद 1998-2003 ड्राउट था, बारिशें नहीं हो रही थी, तो हम समझ रहे थे कि हमारा क्रॉप सफर करेगा, लेकिन यील्ड बढ़ गई, पर एकड़ यील्ड। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि यील्ड बढ़ गई? पता चला पहले ज्यादा पानी देते थे, तो फार्मर ये समझते थे जितना पानी ज्यादा देंगे उतना क्रॉप अच्छा होगा, वो क्रॉप को डुबो देते थे, they would drown the crops. So I think all this requires a lot of effort on the part of the government to do something. इंडस्ट्री की अभी हमने एक पॉलिसी बना के दी है सिंध को for promoting industrialization in Sindh. I will, and these are all taxation measures basically which Sindh government has to adopt. Next please. Next पे चलते हैं। फ्लड्स पे भी सिंध का मैप जो है बीच से डाइसेक्ट करता है इंडस रिवर। देयर इज अ राइट बैंक एंड अ लेफ्ट बैंक, दोनों के फ्लड के मसाइल मुख्तलिफ हैं। लेफ्ट बैंक में एक चैनल बनाने की जरूरत है, जो पहाड़ों से पानी आता है वो चैनल करके आप उसको इंडस रिवर में डाल दें। सो 2 channels need to be built. हमारे पास हमने बनाया है, we have maps and all that. On the left bank again water has to be diverted and natural drains है flood के evacuate होने के, जिसको ढोरा कहते हैं local language में, वो कहीं कहीं तो आपने शहर बना दिए, कारखाने बना दिए, कंट्रोलमेंट बना दिया, लेकिन जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ उसको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि let nature take care of flood rather than you trying to create engineering solutions which don't work. And ये भी सारी चीजें बनी हुई है और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। कच्चा ये जो लोग वाकिफ है, रिवर इंडस के दोनों तरफ बंद बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड्स ओवरफ्लोइंग, और 2 बंदों के दरमियान जो है जब फ्लड सीजन नहीं होता है तो ज़मीन होती है बहुत जरखेज होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, सारे फॉरेस्ट काट दिए गए और अलॉट कर दी गई ज़मीन जमींदारों को। फॉरेस्ट बेल्ट अलॉन्ग द बंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पानी का जो फोर्स आता है वो उसको तोड़ता है और बंद को प्रोटेक्ट करता है। हमने सारे दर्द हटा दिए, वो सीधा पानी का फोर्स बंद को अटैक करता है और फिर बंद टूटते हैं और चारों तरफ पानी फैल जाता है। सो फॉरेस्ट हैव टू बी रिक्रिएटेड, और इन जमींदारों ने फिर अपने अपने डैम्स बनाए हुए हैं अपने लिए, पानी रोकने के लिए और पानी कंट्रोल करने के लिए। ये और बाय लॉ दे आर इलीगल, सो दे हैव टू बी रिमूव्ड नो मैटर हाउ पावरफुल दैट लैंडलॉर्ड इज। नेक्स्ट प्लीज। रीजनल डेवलपमेंट, ये जो 5 घर के गांव है ये नहीं चलेंगे। They have to organize the whole rural sector. Identify करें growth centers जहाँ पर
बड़ी आबादी हो, और जहाँ पर एक कमरे के स्कूल के बजाय फुल फ्लेजेड हाई स्कूल हो। और हमने काम किया इस पे कि 30 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे रोज़ाना आके जा सकते हैं स्कूल में बाय ट्रांसपोर्ट, एंड इट्स हैपनिंग इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट। You don't have to have these one-room schools which are useless. One-room school में आप साइंस, मैथ, इंग्लिश टीचर सेपरेट दे ही नहीं सकते। 7-8 बच्चे बैठे हैं या 15 बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे आते? So you have to have a school campus. हम सुजावल में हम काम करते रहे, हमने पूरा एक कैंपस का डिजाइन बनाया है। एक तरफ लड़कों का है बिल्डिंग, एक तरफ लड़कियों की है, बीच में एक बिल्डिंग है जो कॉमन है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बिकॉज these are expensive things, you can't have it separately for girls and separately for boys. आप कॉमन बनाए, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज दे दे, एक दिन लड़कों के लिए, एक दिन लड़कियों के लिए है। इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हो रहा है, बन रहा है वहाँ पे, एंड दिस हैज टू बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस सिटी। इकोनॉमिक वो दे, वहाँ को फैसिलिटेट करे। वर्कशॉप्स की कोई जगह नहीं है, सड़कों पे वर्कशॉप बने हुए हैं। We have made a design for local workshops ताकि लोगों के पास वो जगह हो, वहाँ बिजली हो और फैसिलिटीज़ हो, ताकि छोटे छोटे कारखाने लग सके वहाँ पर। ये पूरा एक प्लान पार्टली इम्प्लीमेंट भी हुआ है, अवेलेबल भी है। नेक्स्ट प्लीज। शहरों पे आ जाए, सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो इंजन होता है वो ड्राइव करता है शहर। और सिंध में अगर कराची के अलावा आपने डेवलप करना है, जो भी यूथ है इंटीरियर सिंध के, वो वहाँ अपने शहर में नहीं रहना चाहता। आई एम क्वाइट श्योर दैट जो यहाँ पर इंटीरियर सिंध से स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कहेंगे कि अपने ही शहर में वापस जाके आप आए, वो नहीं रहना चाहते। करेंगे क्या? देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो इंडस्ट्री। In fact, the indication of how underdeveloped Sindh outside Karachi is, कोई 4-star होटल नहीं है कराची के बाहर। हैदराबाद में एक है जो बस नाम की 4 स्टार। आउटसाइड हैदराबाद आपको 3-star होटल में नहीं मिलेगा। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ अंडरडेवलप्ड सिंध आउटसाइड ऑफ कराची इज। शहर कहलाने के लिए 4-5 चीजें लाजमी है, इसके बगैर शहर नहीं कहलाया जा सकता। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर नहीं बन सकता। और इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर इसलिए नहीं बन सकता कि शहर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, a large collection of economic activities. वो अगर उसके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल ही नहीं सकती। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और सिर्फ मेरे 1 किलोमीटर रेडियस से ही कस्टमर आ सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल सकता हूँ, बड़ा रेस्टोरेंट खोल ही नहीं सकता। इस वक्त कराची ये हो गया है कि अगर क्लिफ्टन में कोई इवेंट हो रहा है तो नाजिबाबाद से लोग नहीं आते, वो कहते हैं बहुत दूर है, कैसे आएंगे। वरना अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यू हॉप ऑन अ बस, sit there for half an hour, get off and you are there. That's what happens in other cities. That's what happened in Bombay, for example, or Delhi. बाकी डेवलप कंट्रीज को तो छोड़े, बॉम्बे के अंदर कोई ये नहीं कहेगा कि जी बहुत दूर है मैं नहीं आता, इसलिए कि वहाँ उनका ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट। It's crowded but it's efficient. So cities have to be developed, but development of cities cannot be done at the provincial level. You have to have strong, functional, effective local governments. हमने उलट कर दी, जो कचरा उठाने का काम म्यूनिसिपैलिटी का था वो किसी मैंने ले लिया, एक वो कचरा उठाने की कंपनी बना, वो मीरपुर सागरों में भी वही कचरा उठाती है, कराची में भी वही कचरा उठाती है। ये मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। So I think this is where I will end. It's 2 o'clock. Next, I think this is it. रिसोर्सेज पे आना था। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? मैंने पहले कहा कि सिंध के पास बहुत पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसे हमने सही खर्च नहीं किए।
मैं इस वक्त अभी अगर आपने अखबार देखा हो, न्यूज़ देखा हो, एक प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है कि हुकूमत के अखराजात कैसे कम किए जा सकते हैं, उसमें उन्होंने मुझे भी डाल दिया। और मेरा पुराना एक व्यू रहा है कि नंबर ऑफ फेडरल डिविजन्स एंड मिनिस्ट्रीज हैव टू बी curtailed, at least reduced by half. Defense expenditure has to be curtailed. लेकिन सिंध प्रोविंस को आप देखें, यहाँ भी आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलेगी, डिविजन्स मिलेगी, 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। कॉलेज अलग है, सेकेंडरी स्कूल अलग है, प्राइमरी स्कूल अलग है, सबके सेक्रेटरीज अलग है। पहले तो एक एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करता, हम बढ़ाते चले गए एक्सपेंडिचर। So I think Sindh also and all provinces, they also have to look into their own non-development expenditure, cut that, transfer that money to development and meaningful development, not just इधर-उधर की projects बना दिए, पैसे खर्च कर दिए, बहुत सारे बनते रहते हैं। So I'll end here, and if there is time and there are questions, we'll take it. मैं जब सिंध गवर्नमेंट में था तो 40 अरब रुपए का एजुकेशन का बजट था। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा था, नहीं 80 अरब का था। मैंने कहा मुझे 40 अरब दे, मैं तालीम ठीक कर दूंगा। पैसों का मसला नहीं है, मैनेजमेंट का मसला है। And it can, everything is good. We can create an economy that can eliminate unemployment and illiteracy and poverty. ये मुमकिन है। ये मैं सियासी नारा नहीं दे रहा हूँ। In my professional capacity, based on the research work and the policy work that I have done, I can say this, that it is possible to have a country with less than 5%, less than 3% poverty and less than 3 to 5% unemployment. Thank you. Thank you very much. Such an eye-opening lecture and based on the realities. Now it's time for question and answer. Please ask precise. ये लाइव जरा बंद कीजिएगा. Please ask the question. डॉक्टर साहब, सबके माफ़रत के साथ मैं पहला सवाल किसी स्टूडेंट से has to be a नहीं एक पहले एक किसी लड़की से लेना चाहूँ. गर्ल स्टूडेंट फर्स्ट. सही है. Ladies first. Ladies first. Assalamualaikum sir. I just want to know कि जो नई काबीना बनी है 2024 सिंध कैबिनेट पीपल्स पार्टी की, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो ये सारी रिफॉर्म्स कर सके? जी ऐसा है कि स्टेट का एक एजेंडा होना चाहिए. स्टेट का एक एजेंडा होना चाहिए. और एबिलिटी की जहाँ तक बात है, जब मैं फर्स्ट करें मुझे मिनिस्टर बना दिया गया, फाइनेंस का बना दिया गया और मेरे फाइनेंस की कोई बैकग्राउंड नहीं है, देन आई ब्रिंग इन द एक्सपर्ट्स. दुनिया भर में जो बहुत ऐसे लीडर गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क की किस्मत बदल दी, वो उनकी कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज नहीं थी. हम बांग्लादेश की आजकल बात करते हैं, बांग्लादेश इज डेवलप्ड अ लॉट. बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है और इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ करनी होती है वो एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे उनके मशवरे लेकर उनकी बात सुनते हैं और उनके मशवरे पे अमल करते हैं. एंड दे मेक श्योर दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड. दैट इज व्हाट इट इज. सो वी डोंट हैव टू सी कि मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है. तो मिनिस्टर अगर काम कर सकते हैं तो डिलीवर कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज ब्रिंग इन द प्रॉपर स्टाफ, एक्सपर्ट, सराउंड योरसेल्फ. अगर कोई ये समझे कि जी मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो वो कितने ही PhD लेके आया हुआ वो फेल हो जाएगा. सो दैट इज नॉट द इशू. द इशू इज दिस प्रोविंस मस्ट हैव एन एजेंडा एंड आई एम प्रेजेंटिंग एन एजेंडा. आई ऑल्सो वांट टू से दैट ये सिर्फ ये नहीं है कि यही है. आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ निकाल सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस टू यू स्टूडेंट्स एज वेल. थिंक अबाउट इट एंड सी इफ यू थिंक दैट इसमें कोई चीज़ रह गई है या कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, तो
But this is, my objective is to start a discussion, a debate on this. So I think your question is good, but I think we must have an objective. तभी तो मैं बहुत काबिल हूँ, मुझे बिठा दिया लेकिन मुझे बताया नहीं गया करना क्या है। So और जी मेरा नाम शरण कुमार है। मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने चार्टर डिस्कस किया, इस पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट काम भी कर रही है, जैसे कि हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो गई, या सैटेलाइट टाउन का आपने जिक्र किया जिस पर इख्तलाफात भी हैं लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाकर एक ओलिगोपोली कायम की गई है जिसमें अवामी मुफादात को तरजीह नहीं दी जा रही बल्कि पार्टी के मुफादात को तरजीह दी जा रही है, और उसमें बहुत से मसाइल हैं इसी चार्टर में? इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, हर चीज़ के स्टेजेस हैं। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव तय करें, विजन तय करें, ऑब्जेक्टिव तय करें, उसके बाद आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की इश्यूज क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो ये तय कर लेना, और ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है अच्छी भी हो रही है और नहीं भी अच्छी हो रही है। बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी सिंध गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हैदराबाद मीरपुर खास रोड जो है उसने उस इलाके की मईशत बदल दी है। गडाप में रेजिडेंशियल स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया है, इट्स डूइंग वंडर्स। बदीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया है, इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। पूरा BHU का निज़ाम जो है सिंध में बहुत अच्छा चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल्स डिजास्टर के भी हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। तो ये तो होता रहेगा, एंड इट इज अप टू यू, ऑल ऑफ यू, टू मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग, और जहाँ ठीक नहीं हो रही है शोर मचाए। और शोर मचाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज अ माउस, ऑल यू हैव टू हैव इज अ माउस क्लिक, put your opinion on the net, protest, so it can be done. अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो सब चीज गलत होती रहेगी। खामोश ना बैठे, make your voice heard. डॉक्टर केवल नाम है मेरा। जब सर बात एग्रीकल्चर की आप करते हैं, जहाँ भी देखता हूँ बार बार एग्रीकल्चर बहुत एक सेक्टर है, उसमें मेन सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक, उसमें बहुत सिंध में पोटेंशियल है और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशली। उस पर थोड़ा आप अगर कर दें तो। जी, लाइफ स्टॉक में प्रोडक्टिविटी का इशू है। The milk that they produce is very little. वो हमें उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। सखर में मल्टीनेशनल कंपनी ने मिल्क प्लांट लगा के बंद कर दिया। उसने कहा इतना दूध ही नहीं मिलता हमें जो हम मिल्क प्लांट चलाए। तो इशू तो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्टिविटी का है। डॉक्टर अयूब शेख को मेरा एक सवाल ये है कि जब आप शिफ्टिंग ऑफ डिविजन्स इन मिनिस्ट्री फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा एम्प्लॉइज का वो भी तो सूबों में शिफ्ट हो जाएगा, तो उस बर्डन को सूबे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, सूबे जब वहाँ तो जो डिविजन्स है वो बंद हो जाएंगे, और ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट के साथ आएगी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो यहाँ पहले भी थी, उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वहाँ बंद हो जाएगी क्योंकि वो एजुकेशन इज नो लॉन्गर अ फेडरल सब्जेक्ट। यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले से है, वो कंटिन्यू करेगी विद मोर फंक्शंस, मोर पावर। मेरा दूसरा छोटा सवाल है, अभी एक मेरे दोस्त हालैंड में बैठे हैं, उसने कहा कि अभी नरेंद्र मोदी ने 51st जो बुलेट ट्रेन है आज उसका इंडिया में इफ्तिताह किया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें आटे का थैला मुफ्त मिल रहा है। तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन है आप समझ रहे हैं वो तरक्की के लिए सही जा रही है? नहीं, सही तो कोई चीज़ नहीं जा रही है, तभी तो हमें ज़रूरत है इसको डिस्कस करने की। पीछे और सवाल फ्रॉम स्टूडेंट्स दोस्त? हाँ जी, ये वन हैंड इज रेज, जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड मोर गर्ल प्लीज पार्टिसिपेट। अस्सलाम वालेकुम।
आपके चार्टर में जो है मुझे कहीं पे डिसेबल्ड पीपल का जो है वो एम्पावरमेंट की नज़र नहीं आई, जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है मेरे हिसाब से सोसाइटी में। तो कोई वर्किंग है आपकी इसमें? I think that's a good point. I will add that all families जिसमें कोई भी disabled शख्स हो, और disabled की बहुत सारी stages होती है. Some are disabled but still functional. Some are not at all functional. So I think I am not sure कि मेरा subject नहीं रहा है. अगर आप में से किसी की expertise है या experience है, please approach me. You can contact Dr. Riyaz Sheikh and I will connect with you. इस पे काम करते हैं. मैंने बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिजाइन किया, जब मैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर बना चुका था, तो मेरा ये था कि हम एक रोस्टर बनाए ऑफ फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री जहाँ ये डिसेबल्ड लोग हैं, और उनको ओवर एंड अबव जो PISP के पेमेंट्स है पेमेंट करें। वजह ये है कि if I have a disabled person in my family, someone has constantly to be at home, तो मैं जॉब नहीं कर सकता, और अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे किसी को रखना पड़ता है देखने के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए। So I was planning to do that, but then change of management took place and वो रह गया। But it was something in my mind कि जो disabled persons हैं उनको additional payment होनी चाहिए over and above what PISP gives. But this is a good thing. I have not included it, but I will. Thank you. जो KP के गवर्नमेंट है, जो नई जो KP गवर्नमेंट आई है, उसके Sir, ने ये किया है। Sir, my name is Jawad and my question is that departmental जो resources allocate होते हैं, जिस तरह आपने भी अपनी conversation में बताया कि वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? अगर है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही होती? जस्ट लाइक यू सेड कि मसला फंड्स का नहीं है, मसला मैनेजमेंट का है। तो आई वुड लाइक टू नो योर एडवाइस ऑन दिस एंड क्या आपकी राय है? ऐसा है कि एक चीज आप अगर जो लोग डिबेट को ट्रैक करते हैं, हमेशा होता है कि जी डेवलपमेंट फंड्स पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, और जो इस्लामाबाद सुबह को कहती है आप पैसे मांगते हो खर्च तो करते नहीं हो। मसला स्ट्रक्चरल है। मसला ये है कि जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान बजट के साथ बनता है, उसमें जो स्कीम होती है, जो इंक्लूड होती है, वो विश लिस्ट होती है। 1 जुलाई से साल शुरू होता है, एक प्रोजेक्ट में जो बन गया, इंक्लूड हो गया डेवलपमेंट प्लान में, उसके बाद उसका सिलसिला शुरू होता है, उसका PC1 तैयार होता है, उसकी डेटा कलेक्ट होता है, उसके मैप्स बनते हैं, उसके and the whole process by the time it reaches final conclusion, वो फिर करीब अप्रैल आ गया। अब 2 महीने रहते हैं उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो मेरा अगेन एक प्रपोजल रहा है सिंस आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कि PSDP में से वो स्कीम इंक्लूड करें जो PC1 अप्रूव्ड है ऑलरेडी, सो दैट 1 जुलाई से आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। So similar institutional checks need to be taken. एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है PC1 का फॉर्म, अगर किसी ने भी देखा है, I encourage you कि आप उसको डाउनलोड करके देख लें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फिल करने होते हैं, और डिटेल में फिल करने होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वहीं पर फिल कर दें, हर क्वेश्चन के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ डिटेल यू नीड। दैट्स हाउ PC1 इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड। एक सवाल ये है उसमें, हाउ डज दिस स्कीम फिट इनटू द ओवरऑल प्लान? उसमें लिख दिया जाता है नॉट एप्लीकेबल। प्लान तो नहीं, प्लान तो बना ही नहीं, हम स्कीम बाय स्कीम चलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट का बाद में आता है, उसमें भी लिख दिया जाता है नॉट एप्लीकेबल। सो बेसिकली ये वायलेशन है PC1 की फॉर्मेट। PC1 cannot be approved unless these 2 questions are answered in detail and the answer is available in that document. तो ये institutional flaw है, जो वायलेशन है। हम हर चीज को कहते थे वो चोर है उसने कर दिया। बात ये कि वो चोरी के दरवाजे हम खोलेंगे तो चोरी तो होगी। So I think we need to make sure that the PC1 process, it's a very good PC1,
1950 में शायद बना था, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप सिविल सर्विस में रह चुके हैं आपको पता होगा। तो ये दो कुछ चीज़ें अगर हम कर दें तो ये पैसे सही इस्तेमाल होंगे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल एक आता था कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन पे, आपने बात की, तो बात ये है कि एजुकेशन एक तो मिल नहीं रही, स्कूल बंद है, देहात में भी देखा होगा आपने, रूरल में आप ज़्यादा घूमते रहते हैं, जो थोड़ी बहुत मिलती है 25% लोगों को या 15% लोगों को, उसमें भी जो मेरा सवाल है आपसे कि सिलेबस जो है हम पढ़ाते हैं वो इस तरह का है कि हम जो है वो वर्ल्ड लेवल से हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। मतलब एक बंदे में पढ़ भी जाता है तो खुद से एक जो समाज को तब्दील करने का ये वो इस तरह का वो उसमें करंट आता नहीं है। बड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी में डिक्शनरी का रटा लगा के CSS ऑफिसर बनता है और फिर जो है वो करप्ट बन जाता है, पढ़ता है लिखता है डॉक्टर बनता है और चाहता है कि मेरा वाशरूम जो है वो रोड की गली पे आ जाए। तो एक सिविक सेंस वाले बंदे या इस तरह के बंदे पैदा करने के लिए हम जो है सिलेबस पे नहीं समझते कि सिलेबस एक बुनियादी चीज़ है और शुरू से उसी पे काम करना चाहिए कि उसको तब्दील होना चाहिए। जी, मैंने जो पूरा स्कीम प्रेजेंट की है उसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने एजुकेशन और हेल्थ की बात नहीं की है इन डिटेल। बात ये है कि एजुकेशन की फैसिलिटीज भी मौजूद है, बिल्डिंग्स मौजूद है। देयर आर इनफ बिल्डिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स विद 20 क्लासरूम्स। देयर आर इनफ मेडिकल स्ट्रक्चर्स, रूरल हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब वो मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस किया। आप एक ये इदारा है जैसे में बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको सही तरह न चलाएं तो ये बिगड़ जाएगा। कराची में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ज़ेबिस से अच्छी बिल्डिंग है, कस्टम मेड है, तालीम जीरो है। मतलब मेरा जाती तजुर्बा है उसमें। तो यू कैन मेक समथिंग बट इफ यू डोंट रन इट देन व्हाट? वो एक अलग एजेंडा है कि आप गवर्नेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। इस वक्त तो अगर एक चीज मौजूद ही नहीं है तो आप उसको कैसे चलाएंगे? वन रूम क्लासरूम्स है तो उसमें तो आप कोई तालीम दे नहीं सकते, तो आपको यू हैव टू शिफ्ट दैट टू लार्जर बिल्डिंग्स जहाँ पर क्लासरूम हो, स्पेशलिस्ट टीचर्स हो, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, सारी चीजें हो। उसके बगैर तालीम कैसे हो सकती है? वो स्ट्रक्चर वो होने के बाद, अच्छा हम जो सुजावल में काम कर रहे थे उसमें भी हमने वो जो स्कूल बना रहे हैं जिस कंस्ट्रक्शन ऑन है उस पर भी बातचीत हुई है कि इसको नॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत नहीं चलाया जाएगा। और सिंध गवर्नमेंट बाय द वे इज वेरी पॉजिटिव इन दिस रिस्पेक्ट। सिंध गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। सिंध गवर्नमेंट इज वेरी willing to hand over a facility to an NGO or somebody to do it. बहुत सारे सिंध में स्कूल्स हैं जो NGOs को दिए गए और बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो कुछ स्कूल्स हैं और 100+ स्कूल्स जो USAID की फंडिंग से बने हैं, कस्टम मेड कैंपस, बहुत अच्छे कैंपसेस हैं, जस्ट लाइक यू विल गो एंड सेम कैंपस एज इन USA। उसकी मैनेजमेंट के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बना दी गई है ताकि वो उसकी सही हो सके। तो ये सारी चीजें हो सकती है। एक डेवलपमेंट इज नॉट वन कैप्सूल कि आपने कैप्सूल खाया ठीक हो। वन थिंग विल लीड टू अनदर एंड इंप्रूवमेंट्स हैव टू कीप टेकिंग प्लेस। सो यू आर राइट, दिस करिकुलम इज अ बिग इशू, पूरे पाकिस्तान का इशू है। उसको हमने ठीक करना है। तो नेक्स्ट स्टेज में ये भी होगा। डॉक्टर साहब मेरा जी कोई सवाल कर नहीं। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन से मुताबिक ही मेरा सवाल है कि एजुकेशन का स्टूडेंट यूनियन के हवाले से हमारे यहाँ एक ऑर्डिनेंस बल्कि नोटिफिकेशन हो चुका है कि स्टूडेंट यूनियन को बाहर किया, स्टूडेंट यूनियन को बाहर किया। एक तो ये कि उस पर इम्प्लीमेंट जो है ना अभी तक नहीं हो सका है, गो के उसको 1 से 1.5 साल में। और जिस ज़ेबिस में मैं बैठा हूँ शायद यहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन का कोई भी गाना अभी तक है। अच्छा है। बाकी यूनिवर्सिटीज वगैरह में या दीगर इदारे में नहीं। एक तो ये मेरा क्वेश्चन ये कि ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना, अगर कोई भी सूबाई गवर्नमेंट क्या उसके साथ
एक फॉर्म में एक कॉलम आता है कि और हमारा बच्चा किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा। जी मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन वो आज के टॉपिक का मौजूद नहीं। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल इससे रिलेटेड दूसरा सवाल है कि आप बेनजीर प्रोग्राम के आप उसमें शरीक भी रहे, तो क्या आप ये समझते हैं कि बेनजीर प्रोग्राम से आप गुर्बत, अफलास या तंगदस्ती को ख़त्म करके और डेवलपमेंट को भी ख़त्म कर रहे हैं? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद कभी भी गुर्बत खत्म करना नहीं था, इसीलिए इसका नाम इनकम सपोर्ट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि आप जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको थोड़ी इजाफी परचेजिंग पावर दें ताकि उनके हालात थोड़े बेहतर हो सके। गुर्बत खत्म करना कभी मकसद था ही नहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। पीछे से हाथ नजर नहीं आ रहे मुझे, एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू। कैसा था जी, जितनी भी आपने हमें चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, मगर आपने गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है पूरे सिंध में हर डिपार्टमेंट में बैड गवर्नेंस पे आला मिसाल गिनी जा रही है सिंस 15 इयर्स। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए गवर्नेंस और ये जिसको हम ज़्यादा करप्शन की ले लें, इट हैपेंस बिकॉज your structures are not proper. लोग पैदाइशी बुरे नहीं होते, हर शख्स नहीं बैठा है चोरी करने के लिए। लेकिन जब आप जैसे मैं गाड़ी लॉक भी न करूँ और लैपटॉप सीट पे छोड़ के चला जाऊँ, तो वो तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ किसी को कि आपको उठा के ले जाए। जहाँ सिस्टम्स बने हुए हैं, जैसे मैं आई हैड अ चांस टू लिव इन जेनेवा फॉर अ व्हाइल, वहाँ पर स्ट्रीट बल्ब का जो है उसका एक टाइम पीरियड है, मेरा ख्याल है 1 month या 2 month, एवरी बल्ब इज चेंज। वो जो चल रहा होता है वो भी चेंज कर देते हैं। तो मेरा चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज के साथ काम था, तो मैंने पूछा कि ये तो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये कंट्रोल मेजर है, किस वक्त कौन सा बल्ब खराब होता है हमें नहीं पता। तो अगर 4 बल्ब चेंज हुए और वो कहता नहीं 4 नहीं 8 चेंज हुए, तो हमें तो 8 के पैसे देने पड़ेंगे। दिस क्रिएट्स अ विंडो फॉर करप्शन। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हम इसको खत्म कर देते हैं, हम एवरी बल्ब इज चेंज, लेट्स से एवरी मंथ, so there is no option for anybody trying to file a false statement कि जी ये 4 नहीं 8 बल्ब खराब हुए थे। So when you don't have proper institutional arrangement, you are creating an option for corruption। और क्योंकि मेरा in and out गवर्नमेंट में रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ निकाल दिया जाता हूँ, लेकिन रहा जरूर हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि अगर ये सिस्टम ठीक हो, रूल्स ठीक हो, तो वहाँ ऑप्शन नहीं होगा करप्शन का। सो ये गवर्नेंस का इशू हम बार बार लाते हैं कि गवर्नेंस खराब है। गवर्नेंस इसलिए खराब है कि हमने वो सिस्टम नहीं बनाया। देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई करप्शन नहीं है, किसी ने आज तक इल्जाम नहीं लगाया कोई चीज, बिकॉज इट इज ऑटोमेटेड फ्रॉम A to Z, वी हैव ऑटोमेटेड इट। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हर बिजनेसमैन तारीफ करता है, FBR को हर बिजनेसमैन बुरा भला कहता है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी हमने बनाया, ऑटोमेट कर दिया A to Z। So when you create systems, you eliminate the option for corruption of bad governance। And so instead of keeping harping कि governance खराब है, corruption है, चोर है, let's see how systems can be made so that the options, the opportunities, the avenues for corruption or bad governance does not exist। Yes, miss। जी। मेरा नाम शाजिया है और मेरा एक कमेंट और एक क्वेश्चन है। पहले तो ये मेरा कमेंट, जिसे हम डिस्कशन में ज़रूर हम लाते हैं हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, पर्सनल गैदरिंग्स में, कभी करप्शन है, बैड गवर्नेंस है और इतनी तबाही हो चुकी है 15 सालों में, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी कोई डेटा नहीं है जिसपे हम ये बता सके भाई 15 साल पहले तो बड़ा दूध और शहद की नहरें बह रही थी, अब 15 साल के बाद ये तबाही आ गई। तो इस किस्म का जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि नहीं भी बस अब क्योंकि पॉलिटिशियन सारे खराब हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट और इस किस्म की जो नाउमीदी लोगों में फैलाने की भी कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल में हम ये ज़रूर करें, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हम उनको ठहराएं, लेकिन उनके साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म्स हैं या
किस तरीके से हम उनको ज़्यादा जो फेयर सिस्टम बना सकते हैं वो भी हम बात कर सकते हैं। तो मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ इस किस्म की डिस्कशन होती है कि भी करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, तो फिर क्या होना चाहिए? आपके पास कोई डेटा है जिस पे हम इवेल्युएट करके नहीं, पहले तो सब कुछ सही था, अब खराब हो चुका है। तो इस किस्म का भी माइंडसेट लोगों में, स्पेशली यूथ में वो, और फिर जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हुई, तो क्योंकि अब ये नहीं हम जानते कि इसका पर्पस क्या है। हम ये अक्सर ये होता है कि भाई कोई क्या डेवलपमेंट लाएगा, ये तो भिखारी बना रहे हैं औरतों को भी, ये नहीं, वो गरीब औरतें हैं जो बेवा है, जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो इनके लिए जो बीमार है इनके लिए सपोर्ट इनकम का वो सिस्टम है। तो इस किस्म की चीज़ें भी हैं। आई डोंट नो हम किस अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि हम जो अक्सर रिलाय करते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन क्या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करें? और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी यूथ है, इतना हमारा बड़ा यूथ, आई थिंक 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो हम क्या एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, इस किस्म की चीज़ें जो खुद से आप कर सकते हैं, क्या उनके हमारे पास कोई एजुकेशन है, कोई अवेयरनेस है? कि बाहर की दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, तो उन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो क्या हम ये चीज़ें अपने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई यूथ अपने तौर पे एक्सप्लोर करें चीज़ें, बचे कि हम चीज़ गवर्नमेंट पे डाल दें? थैंक यू। Okay, first part of the question तो ये है कि this is a, आप रिसर्च करें, आप, this is an educational institution, you are students, you are teachers here. Why don't you start a project, research project, जो आपके सवालों का जवाब दे कि what was the condition 15 years ago, what was the condition 40 years ago, has there been improvement, has been a deterioration, क्या factors है deterioration के? जब आप पैसा allocate नहीं, कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा अलोकेट ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ खराब हो जानी है। 2004 में एक रेलवे ब्रिज गिर गया हैदराबाद के पास, रन पठानी ब्रिज कहलाता है, कई साल से जंग लग रहा होगा, जाहिर है उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे ही नहीं दिए गए तो जंग लग के गिर गया। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर थिंग्स गोइंग रॉन्ग। हम बहुत आसानी से हर चीज़ कहते हैं कि करप्शन की वजह से खराब हो गया, बट चीज़ें होती है तो उसकी पीछे वजह होती है। The Nazir Income Support Program, as I said, was never designed to eliminate poverty. और बहुत इस पे हमने काम किया था, तो उसका सिर्फ ये है कि और जिसको 1000 रुपये मिलते थे वो नौकरी छोड़ के 1000 रुपये पे गुजारा नहीं करेगा। तो ये कहना कि जी वो फकीर बना दे रहे हैं, उनकी तो नहीं बना, सप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी इनकम थोड़ी। जो आपने एंटरप्राइज डेवलपमेंट का कहा सही है, everybody should try to do something yourself, but everybody sitting in this hall cannot become an entrepreneur. उसकी एक वजह तो ये है कि जो चीज़ आप बनाएंगे वो बेचनी भी चाहिए, बिकनी चाहिए, so there has to be a market. If there is no market for your product, और मैंने कई ऐसी ट्रेनिंग की है माइक्रो एंटरप्राइज ग्रुप्स की, खवातीन की भी, वो कहती है कि हम सीख तो गए लेकिन हम करें क्या, बेचें कहाँ जाके? So when your larger economy is shrinking, you don't have the options, अब ये नहीं हो सकता। बहुत सारी NGOs हैं, बहुत अपनी तारीफ भी करती है, करवाती भी है कि उन्होंने जी 400 खवातीन को स्विंग मशीन दे दी, मैंने सारी इवैल्यूएशन की है, या बकरी दे दी, गाय दे दी कि दूध बेच के पैसा कमाएंगे। जहाँ जहाँ इन्होंने खवातीन को सिलाई मशीन दी है वो पैसा नहीं कमा सकते, वो कहते हमारे मोहल्ले में सब गरीब है, कौन आएगा हमसे कपड़े सिलवाने को? So it's on paper these things look very nice, that micro enterprise is very good, and India has done this, Bangladesh has done this, that. It doesn't work. It doesn't work. Nowhere in the world micro enterprise has changed the fortunes of that country, not even Bangladesh. Bangladesh में जो डेवलपमेंट हुई है वो गवर्नमेंट की वजह से हुई है, ग्रामीण बैंक की वजह से नहीं हुई है। I'm making a categorical statement. Whoever wants, we can have a seminar on this very subject. And I am willing to talk about it. There is enough research that has happened. Thank you for your questions. अच्छा सर, मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, तो आपने जब क्लास में ये बात की थी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इनक्वालिटी को भी देखना पड़ता है सर, तो आप सिंध हुकूमत में हैं और रहे हैं, तो अच्छा, तो सर इनको ये लैंड रिफॉर्म्स पे, वेल्थ टैक्स पे ये अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनक्वालिटीज़ को जब खत्म करेंगे तभी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। मेरा जो अपना obviously my research career is about 40 years old.
you learn a lot, you change your views, you change. What I have 40 years ago, I would have said inqilab aana chahiye. You know, today I wouldn't say, because it's not practical. It's not that I've changed my view, but it's just not practical. The way to do that is to develop urban areas. Give the ordinary peasant a choice whether he wants to work for his landlord or go in the city and work in a factory. Once you give them that choice, वो land reform का subject ही redundant हो जाएगा. Because land reform is really, I have no problem कि किसी के पास 10,000 एकड़ जमीन है. मेरा problem तो ये है कि 10,000 खानदानों को control करता है. That is the problem. If I can create a system where no individual is forced to work for somebody because that person has no alternative, so create an alternative. And you create a more fair society. सर आपने एक बात कही कि जो हमारी गवर्नमेंट्स का मसला नहीं है, हमारे सिस्टम का मसला है. तो आपको नहीं लगता कि जो सिस्टम को बेहतर करना चाहता है फिर उसकी आवाज़ बंद करा दी जाती है? और फिर इस चीज़ का ट्रेड तो हम हमारे इलेक्शन में देख ही चुके हैं कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में किस तरह से गवर्नमेंट आई, क्योंकि पीपल का जो मैंडेट था वो तो आया ही नहीं और अपनी मर्जी से सारी चीज़ें हो गई. तो करप्शन तो रग रग में बैठी है इस गवर्नमेंट के. मेरा ख्याल ये भी एक मिथ बन गया है कि आवाज़ बंद करा दी जाती है. मेरी आवाज़ तो किसी ने बंद नहीं किया. मैंने ज़ियाउल हक के दौर में फौजी गाड़ियों पे पत्थर मारे. मैंने मुशर्रफ के दौर में आर्टिकल्स लिखे, जिसमें एक आर्टिकल में मैंने उसको कंपेयर किया एक अफ्रीकन डिक्टेटर से हु वाज अ कैनिबल, यानी वो इंसान का गोश्त खाता था. और मेरा उस आर्टिकल में आखिरी सेंटेंस था, आवर जनरल्स हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज येट, जिसमें मुशर्रफ बहुत नाराज भी हुए थे. मैं आजकल ओपनली कहता हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करने की जरूरत है. मुझे तो जेल जाने का शरफ आज तक नहीं हासिल हुआ. तो ये आवाज डर के मारे न बन गए. सर आपको नहीं लगता जो अभी इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने जिस मैंडेट को चूज किया उसके बाद वो तो आई नहीं ना, क्योंकि रातों रात जिस तरीके से रिजल्ट Raise your voice, protest. Keep doing it. Keep doing it. देखिए मैं नहीं होता है, गलत बात है कि नहीं होता है. मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी अवाम को ये सलूट करना चाहिए हमें. There are countries like Algeria, Burma, others, जहाँ 50-50 साल फौजी हुकूमत रही है, कोई इसने चू भी नहीं किया. पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है, पहली तकरीर जो वो जनरल करता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, इसलिए कि उसको पता है कि इस प्रॉमिस के बगैर वो हुकूमत नहीं कर सकता. 2 साल में इलेक्शन करवाता है. ये और बात है कि इलेक्शन वही करता है, लेकिन करवाता है. और 8 साल 10 साल से ज्यादा उसकी हुकूमत नहीं चलती. सिर्फ 8 साल. ठीक है ना. जनरल ज़ियाउल हक ने एक बहुत ही कमजोर शख्स को वजीर आजम बनाया, सिर्फ के छोटे से गांव से उठा के, मोहम्मद खान जुनेजो. उसके बारे में उसकी कमजोरी के मजाक बनाया जाता है. Even he stood up and challenged Ziaul Haq. The people of Pakistan don't submit, they fight. So, अच्छा ये भी है कि कोई चीज कभी एक्सपेक्ट न करें कि आज आप करेंगे तो रिजल्ट कल नजर आएगा. Individual efforts all add up. मैं सिंध गवर्नमेंट में था, मैंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ नहीं चले. एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था 100,000 हेक्टेयर्स पे मैनग्रोव को रिहेबिलिटेट करने का. सिंध में जो अगर मैप देखें, सिंध का जो डेल्टा है जहाँ जस्ट रिवर मीट्स रिवर, देयर इज अ वेरी लार्ज डेल्टा. वो डिग्रेड हो गया था क्योंकि पानी नहीं आता, ऊपर से डैम्स बना दिए हैं, मैनग्रोव्स हैड डाइड. I started a rehabilitation project. Technically it was possible to rehabilitate. वो नहीं चल सका, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने रोक दिया. फाइनल स्टेज पे जाने के बाद भी रोक दिया. I was very disappointed. Then I learned that something has happened, और प्रोजेक्ट हाल हो गया. And Guinness Book of Record में उसको नंबर वो मेंशन है वो प्रोजेक्ट. आप Guinness Book of Record में जाके देखते हो. So something that I prepared the project, failed to implement it,
but it got picked up somehow for some reason, and it's undergoing now, and it's going very well. So don't think that what you do goes waste. Nothing goes waste. All your efforts and individual efforts then add up to create a momentum and a force. If not today, tomorrow, 5 years from now, 10 years from now. Don't give up. Don't think it doesn't happen. It happens. Is there any more questions? Why not? So, thank you very much, Dr. Saab. Please give a big hand to honestly speaking, I have never seen a speaker like him who is answering all questions and offering to do more questions. So, thank you very much. Now, I would like to request Professor Dr. Riaz Sheikh Saab to come forward and please end this session and say a word of thanks to our wonderful guest. Please. आपको हमेशा सुनना एक नया विंडोज ओपन करता है। मेरा एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट डिस्कोर्स में तो आनी चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए तो बहुत अल्टीमेटली गिव थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग शेयरिंग। Thank you very much for joining us and for your presence. Thank you.